everyone, welcome back to our YouTube channel. मैं हूँ आपकी host Dr. Mansi Mishra. Today we are back again with a new video and this video is going to be very important because yes, the date for the CBT of MNS 21 has been announced. Many of you have received the email but some of you haven't. तो जिनके पास अभी ईमेल नहीं आया है उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दो दिन में these all works depends on technology and yes of course manpower is also necessary to deal with the technology. So if you haven't received the email, no need to be worried about, you will receive within a day or two. Yes, so the date which is a confirmed date by Indian Army for the CBT of MNS 21 is 28th of July of 2021. Means in this month only, in the month of July on the 28th, you are going to have your CBT which is going to be conducted in 2 shifts. Earlier in 2020 there were 3 shifts, but in the year 2021 there are going to be only 2 shifts. So you have to deal with the 2 shifts and the question paper will be slightly different for both the shifts. Again, marking will be done on the same pattern which they have adopted previous year, so be careful with all the portions which you are preparing. 2021 is an alternate year, so no need to be worried about reasoning, but still this is uncertain, the paper is going to be uncertain, we cannot predict any questions or we cannot predict anything about it, so be prepared for some few questions of reasoning also. Though it is alternate year where that is expected that you are not going to face the reasoning questions, but still the paper is unpredictable, the pattern is unpredictable, so please be ready with few of the questions. Okay, as we are here today I am going to discuss the last 25 days strategy for the MNS 21. But before starting, I want to say that if you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. And if you are liking the video, then don't forget to hit the like button, so it will motivate us and we are able to make new videos earlier very soon now. Okay, so now coming to the strategy for the last 25 days. As everyone knows कि the paper is going to be divided into 3 sections: general intelligence, general English and general science. Okay, so for the general intelligence 50 questions are going to be there, and for general science 50 questions, and for general English as well there are going to be 50 questions. Okay, no negative marking is going to be there, so you don't have to be worried about any wrong question which you have attempted, but still the paper is going to be of 150 marks, 1 mark for each question, no negative marking, but you have to be careful about every question because last year the cutoff was 116, so maybe this year cutoff can be between 116 to 120. Okay, so you have to be prepared for this much cutoff, 116 to 120. इतना आपको श्योर कर लेना है आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कि यू आर अटेम्प्टिंग 120 क्वेश्चंस करेक्टली. इसके बाद यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट द करेक्ट क्वेश्चंस टू बी इन द फाइट, टू सिक्योर गुड पोजीशन, टू सिक्योर गुड रैंक. ओके, ultimately keep this thing in your mind, then you have to attempt all the 150 questions in 90 minutes. Okay, all the 150 questions in 90 minutes and maximum number of questions which you are attempting should be answered correctly, because the paper is going to be slightly tougher this time and you are going to face a little bit higher competition. Reservation is introduced from this year only, cutoff is going to be somewhere between 110 to 120, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी है. Now coming to the point, coming to the last 25 days strategy.
3 subjects: general intelligence, general science and general English. एंड आप सभी को पता है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का वेटेज इक्वल है, तो आपको इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए इक्वल मेहनत करनी है. जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो दैट इज़ ओशन. बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, चाहे हमारा ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, स्टैटिक हो, करंट हो, तो दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन. कमिंग टू द जनरल इंग्लिश, the vocabulary and grammar both are included in this portion. देखो vocabulary तो हमने हमेशा आपको कहा है कि that is infinite, क्योंकि if you have prepared 1000 words then no one knows that which question is going to be asked in the paper, so that is completely unpredictable, but still हम प्रिपेयर तो करते ही करते हैं. इसके अलावा साइंस पोर्शन में मैक्सिमम जो आपका वेटेज होता है दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने जो लास्ट 25 डेज़ हैं, अब आपको इन लास्ट 25 डेज़ में यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. यू हैव टू गिव 4 hours each to each subject. You have to give 4 hours to English, 4 hours for GS and 4 hours for your science portion. In 4 hours of GS you have to give 3 hours to your static GK, because static GK plays a very major role in your paper, and you have to give 1 hour only to the preparation of current affairs. Okay, so for from these 4 hours of GS portion you have to give 3 hours for the revision of the static and 1 hour for current affairs. Now coming to the English portion, you have to give 2 hours to your vocabulary section and 2 hours for your grammar portion. And now coming to the science portion, you have to give 3 hours for your biology and 1 hour for physics and chemistry collectively. And so I hope 12 hours study time we have decided. Okay, I hope देखो 12 hours देखने में अभी यार कहोगे यार 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे पढ़ाई में निकाल दिए, 6 घंटे सोएंगे, 18 घंटे हो गए, कैसे क्या होगा? बाकी खाएंगे पिएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, कहाँ जाओगे घूमने? कोविड है भाई, कहीं जाना भी नहीं है. और फिर ये these last 25 days are very very precious. They are very very important. So घूमना फिरना ये सब बहुत मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर से यही टाइम आएगा, एक बार एग्ज़ाम दे लिया ना फिर आराम से घूमेंगे फिरेंगे सोएंगे. बट ये 25 डेज़ और CBT ऑफ MNS 21 ये दोबारा नहीं आने वाला है, तो इसको हमें यूटिलाइज़ करना है. एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि अपनी जो इच्छाएं हैं सपना सपना ही बनकर रह जाए, बिस्तर से इतना भी प्यार मत कर. ये लाइन एक मैंने कहीं पढ़ी थी, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सपना सपना ही बनकर रह जाए, बिस्तर से इतना भी प्यार मत कर. करना है तो कुछ आज कर, कल का इंतज़ार भी मत कर. ये 25 डेज़ आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, इन पर फोकस करिए. अगर इनको जी जान से पकड़ लिया, ये 12 घंटे दे दिए ना, देन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज इन योर लाइफ. Those 2 shining stars, that fascinating uniform that is waiting for you. आज की मेहनत और कल का सुकून. आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है. आज सुकून चाहिए या कल आगे आने वाला लाइफ लॉन्ग सुकून चाहिए. द डिसीजन इज़ योर्स. नाउ कमिंग, आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से पकड़ना है. ठीक है, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने हैं. आई एम नॉट सेइंग कि दैट करंट अफेयर्स आर नॉट आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स आप उठा लीजिए. और आपको हर न्यूज़ पे बहुत फोकस नहीं करना है. जैसा कि मैंने आपके पिछले भी आपको बताया हुआ है, अपने वीडियोस में कहा हुआ है कि आपको नेशनल न्यूज़ कवर करनी है. लोकल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़ जो होती है आपकी, वो आपको कवर नहीं करनी है. नेशनल न्यूज़ आपको कवर करनी है.
साथ ही साथ उन चीज़ों पर फोकस करना है जिसने एक काफ़ी इम्पैक्ट डाला हो आपकी कंट्री पे, जो एक काफ़ी मेजर इशू बन के सामने आया हो। जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में जनता कर्फ्यू पूछ लिया गया था, तो उसी तरीके से कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में रख लीजिए। कुछ अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। अब जैसे अगर आप अवार्ड सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये तो स्टैटिक पोर्शन होता है, आपने सोचा कि करंट में तो अभी ये अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, चलो इनको पढ़ लिया। आपने करंट तो प्रिपेयर किया कि ये अभी रिसेंटली अवार्ड्स अनाउंस हुए, लेकिन आपने इनका स्टैटिक पोर्शन छोड़ दिया। फर्स्ट अवार्ड वो किसको मिला था, इंडिया से किसको मिला था, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करके चलनी हैं। यानी सिर्फ आपको अवार्ड सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन में करंट ही नहीं, इनके पीछे हिस्ट्री भी लेके चलनी है। दैट फर्स्ट अवार्ड इज़ गिवन टू होम एंड कौन ऐसी मेजर पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी भी पूछी जाती है जो स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके चलनी है। कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपको 100% प्रिपेयर करने ही करने हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला डांस फॉर्म, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अवार्ड सेक्शन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनसे कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2020 का क्वेश्चन हो या फिर आपके भारत रत्न से पूछा गया क्वेश्चन हो, खेल रत्न से पूछा गया क्वेश्चन हो, तो अवार्ड सेक्शन तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। स्पोर्ट्स सेक्शन ये भी आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। सिंबल्स हो गए, ये भी प्रिपेयर करना है। मेजर क्रॉप्स हो गए, सुपरलेटिव्स, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो वर्ल्ड के हों। इसके साथ ही साथ मेजर रिवर्स यानी ड्रेनेज सिस्टम भी आपको प्रिपेयर करना है। सिटीज़ प्रिपेयर करने हैं जो रिवर बैंक्स पे सिचुएटेड हैं। निकनेम्स प्रिपेयर करने हैं। मेजर क्रॉप्स प्रिपेयर करनी है। ये सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं जीएस में, जिन्हें किसी कीमत पर भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। पॉलिटी का वेटेज लास्ट 2 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको पॉलिटी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेक द लक्ष्मीकांत एंड यू हैव टू गो थ्रू इट, बिकॉज अब आपके पास टाइम भी उतना नहीं है और आप उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। एक चीज़ को करने के लिए भागोगे तो पीछे कई सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है या फिर एक एक चैप्टर की, बस लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट पहले कौन थे, इस समय कौन है, मेन प्रेसिडेंट्स कौन रहे हैं जिनका मेजर रोल रहा है या कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ आपको क्या प्रिपेयर करना है, उनका टेन्योर, क्या इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, कौन कौन उन्हें क्या करता है, कैसे रेजिग्नेशन उनका रहता है, इम्पीचमेंट क्या पार्डनिंग है, क्या इम्पीचमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको उनके बारे में प्रिपेयर करनी है। यही आपको हर एक चैप्टर में डील करते हुए आगे बढ़ना है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगर आपने मॉडर्न प्रिपेयर कर ली है, उसके बेसिक पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, यानी आपने हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। ये हुआ हमारा जीएस का पोर्शन और करंट अफेयर्स स्टार्टिंग हमने डिस्कस कर ली। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश पोर्शन। सभी को पता है एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, प्रीपोजिशन आने ही आनी है, कंजंक्शन आने ही आने हैं, आर्टिकल्स आने ही आने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आएगा ही आएगा, स्पेलिंग्स आएगी ही आएगी। तो ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं हैं। इसके बाद ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन की बात कर ली हमने, ठीक है। और आपके क्या टॉपिक रह गए, एक्टिव एंड पैसिव आएगा ही आएगा आपका, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके आएंगे ही आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका आता ही आता है। तो ये कुछ 10-11 टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ये टॉपिक तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम पैसेज आएगा क्या, पैसेज आता है क्या, पैटर्न में है क्या।
क्योंकि वो कई सारे ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसमें पैसेज भी दिया होता है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर कि अभी तक की MNS हिस्ट्री में पैसेज उन्होंने नहीं पूछा है, तो आपको पैसेज के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो 10-11 टॉपिक अभी बोले हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी आपने अपना प्रिपेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब बात आती है कि ये तो आपने कहा था कि ओशन है, अब हम क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, टाइम भी कम है और कितना रटें। रटने से अच्छा है अब चीज़ों को समझ कर रिवाइज़ करिए, ठीक है। जितना आपने पढ़ लिया है, याद हो गया है, उसको एक फ़ाइनल टच दीजिए, फाइनल रिवीजन दीजिए, और जो भी बचा हुआ है उसको समझते हुए दिमाग में बैठाइए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आप एक्स्ट्रा रटोगे तो पिछला वाला भूल जाओगे। अब आपको एक्स्ट्रा रटने का टाइम नहीं है, पिछला वाला सिर्फ रिवाइज़ ही करना है। ओके, क्या करना है, जो पिछला आपने रिवाइज़ कर लिया वहाँ पे आपको, अगर सपोज़ आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज़ एलिमिनेशन मेथड। उन 4 ऑप्शंस में जो आपको ऑप्शन लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, उन्हें पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपको आंसर चूज़ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जब हमें आंसर नहीं आ रहा होता है, क्वेश्चन डाउटफुल होता है, तो हम हमेशा अक्सर ही हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इससे गलत ना करते हुए हम सही की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद साइंस के पोर्शन में आते हैं। साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। हम हर बार कहते थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने बॉल ट्विस्ट कर दी और प्लांट फिजियोलॉजी भी पूछी थी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, ये दोनों ही चीज़ें, और साथ ही साथ आई एम सेइंग कि बायो का एक भी पोर्शन मिस करके आपको अपने एग्ज़ाम में नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी पोर्शन बायो का आपके एग्ज़ाम में मिस नहीं होना चाहिए। आपको एनी हाउ प्रिपेयर करना ही करना है। बायो का एक भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। कमिंग टू द पोर्शन ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग रिएक्शंस या फिर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेटलर्जी, इसके बाद पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सारी चीज़ें यानी बेसिक जो है आपकी केमिस्ट्री का, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, यानी आपने जंग को जीत लिया है। फ़िज़िक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चंस फ़िज़िक्स के होंगे, और अगर वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी होंगे तो दे विल ऑल जस्ट फार्मूला बेस्ड। आप उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए करना है वो 1 लाइनर्स उठाने हैं। जितने ज़्यादा आप 1 लाइनर्स फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में प्रिपेयर कर लेंगे, यानी आप अपनी जीत की तरफ उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब लास्ट 25 डेज़ के लिए। जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उसको एक फ़ाइनल टच दीजिए, रिवाइज़ करिए, क्योंकि बार बार कहा है मैंने, एक बार फिर कहूँगी कि आपको जीत वो 100 क्वेश्चंस दिलाएंगे जिनको आपने 100 बार पढ़ा है, ना कि वो 1000 क्वेश्चंस जिन्हें आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है। 100 क्वेश्चंस को 100 बार पढ़िए, अपने दिमाग में छाप लीजिए, यही आपको जीत की तरफ आगे ले जाएंगे, ना कि 1 लाख क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए और वो वहाँ पे याद ना आए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो लास्ट के लिए यही मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। यही मेरा मोटिवेशन है आपके लिए कि अपना जी जान इन 25 डेज़ में लगा दीजिए, 100% दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। आगे होगा नहीं होगा क्या होगा ये तो देखा जाएगा ना यार। एक पेपर हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी हमारा फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे चल के क्या करना है। अभी मेहनत आगे बहुत सुकून देगी।
और अभी का सुकून आगे बहुत आंसू देने वाला है। सो लास्टली बस यही कहना चाहूँगी कि जितना भी अभी तक आपने अपने टाइम को वेस्ट किया है या यूटिलाइज़ किया है, उन सबको पीछे छोड़कर नए जोश के साथ आगे बढ़िए और 25 डेज़ में जी जान लगा दीजिए। होता है नहीं होता है बात की बात है, लेकिन मन में एक रिग्रेट ना रह जाए कि ये 25 डेज़ अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता ना, तो शायद पेपर शायद बहुत तकलीफ़ देता है। तो ये शायद की गुंजाइश मत पालिए और अभी से जुट जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एवरीवन।